ओके, सो हमने 5.1 जो हमने किया था उसके पहले के एग्जांपल्स देख लिए हैं या बाकी है? हाँ सर, देख भी ले हाँ ओके, तो 5.2 के पहले वाले जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? 102। ओके, सो एग्जांपल 3 से, राइट? ओके, सो पहले वो डिस्कस करते हैं। चलो, सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 5.1 और उसके एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5.2 भी हमने कंप्लीट कर लिए। उसके जो एग्जांपल्स थे वो बाकी है, तो वो पहले कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू 5.3। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने पूरी एक्सरसाइज की है तो यहाँ तो सारा मोस्टली समझ में आ ही जाएगा। कोई ऐसा हो तो हम देखेंगे, अदरवाइज से सिंपल न्यूमेरिकल्स है सारे। सो फाइंड एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। सो हमें 10th टर्म फाइंड करना है, मतलब कि A10 फाइंड करना है, राइट? ओके, ऑफ द एपी 2, 7 एंड 12। सो 2, 7 एंड 10 ये हमारा एपी है और उसका हम 2, 7, 12। 2, 7, 12, यस, 2, 7 and 12. So we have to start, say A is equals to say 2, then D is equals to say A2 minus A1, A2 minus A1 is equals to 7 minus 2 is equals to 5. Okay, so A is equals to this, D is equals to 5. Okay, we have to find out A10. So A10, we have the formula, say an is equals to a plus n minus 1 into d. Therefore A10 is equals to say a plus 10 minus 1, that is 9, d a we have 2 plus 9 multiplied by d we have 5. So 2 plus 9 5s are 45 is equals to 47. So A10 we are getting say 47. Done? Next example number 4. Okay, so which term of the AP, हमें which term पूछा है, मतलब हमें n फाइंड करना है. Okay, AP 21, 18, 15, say 21, 18, 15, ये AP है हमारा 21, 18, 15 is minus 81, मतलब कि हमारे पास एक AN है, AN is equals to what? minus 81. लेकिन ये कौन सी टर्म है? that we don't know, that we have to find out and we have to find out, that's it. उसके बाद दूसरा है वो आगे देखते हैं हम, पहले ये चेक कर लेते हैं. So we have say A is equals to 21, D is equals to say A2 minus A1, that will be equals to say 18 minus 21, that will be what? 3 and minus 3, right? Okay, so A and D we got. Now putting the value, AN is equals to A plus n minus 1 into D. Therefore AN value we have minus 81, A value also we have, that is 21, plus n minus 1, n we have to find out, and D minus 3. So say this will come this side, so minus 81 minus 21 plus becomes minus is equals to n minus 1 into minus 3. So say 1 and 1 2, so 80 and 20 100 102, so minus 102 is equals to say n minus 1 into minus 3. This minus will come this side downward. This is also minus, otherwise we will write like this, minus 102 divided by minus say 3 is equals to say n minus 1. This will become plus, okay, and 3 3s are 9, 1 and 2 and 3 4s are, so 34. So we will get
we will get what 34 is equals to n minus 1. Therefore 34 plus 1 is equals to n. Therefore n is equals to what? 35. So minus 81 will be the 35th term. 835. What No, means a35? Yes, a35 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 81. Yes. Now next is there that also is any term zero question mark. मतलब कि पूरे एपी में ऐसा बनेगा कि टर्म जीरो आएगी, मतलब ऐसी जैसे माइनस 81 वाली टर्म है वैसे ही कोई जीरो वैल्यू वाली टर्म होगी, वो क्वेश्चन मार्क है. तो हम देख लेते हैं होगी या नहीं होगी. से जीरो वैल्यू, सो हम ए एन की जगह क्या लेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे. ओके, सो ए एन की जगह ले लेंगे हमसे जीरो. Then a, that is again what? 21 plus n minus 1 और d की जगह minus 3. If we are getting natural number like this, yes, it will be there. Or if we are not getting, if we are getting the fraction, then zero term will not exist. Okay, so say this will come this side, so minus 21, and here say n minus 1 into minus 3. So minus 21 divided by minus 3, so minus minus plus, and 3 7 21 is equals to n minus 1. So we will get say 7 plus 1 is equals to n, and 8 is equals to n. So yes, zero term also will be there because we are getting a natural number. So eighth term will be what? Zero. Okay, we will check here. Eighth term we can check. Say this is first, this is second, this is third. So fourth will be what? 15 minus, see d is what? 3 minus 3. So here it will come, fourth will be say fourth term will be say 12. Then say 9, then 6, then 3 and 0. So say 4, 5, 6, 7 and 8. So eighth term is 0. Right? Then give reason for your answer. Yes. So 0 will be the eighth term because we are getting n fraction, that is 8. Not in fraction, we are getting a natural number. So that's why it will exist. Simple? चलो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5. पेन ले लेते हैं हम से ऑरेंज. ओके, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5. सो एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म क्या होगा? 5 होगा. ओके, एंड देन सेवेंथ टर्म इज व्हाट? 9. सेवेंथ टर्म क्या होगा? 9 होगा. सो से A7 विल बी व्हाट? 9. That's it. Yes. So हमें AP find करना है. We have to find out AP. Okay. So A3 का formula say A3 is equals to A plus 2D, right? A plus n minus 1 into D, and we will put 3. 3 रखेंगे तो 2D मिल जाएगा. यहाँ सबकी वैल्यू रखे तो हमें आंसर मिलेगा A3 की जगह 5. A हमें नहीं पता है, so A plus 2D. This will be my say here also we will take the value of A. Therefore say A will be equals to 5 minus 2. So this is the value of A, right? Then next whatever we are having A7, so A7 will be A plus 6B. Therefore A7 value we have, that is 9 is equals to A plus 6D. Okay, so 9 is equals to value of A we have 5 minus 2D. 5 minus 2D plus 6D. Therefore, we will get say 9 minus 5 is equals to 6D minus 2D, that is 4D. So here we will get 4 and here we are getting 4D. So D will be equals to 1. Putting the value of D in the equation, say name it like say 1.
So putting the value of D in equation 1, we will get, say, A is equals to 5 minus 2, B is equals to 1. Therefore 5 minus 2, that will be equals to 3. So A is equals to what? 3. So A is equals to 3, then D is equals to 1, so 4, then 5, then 6. This is my AP. Done? Simple? Yes. यही फाइंड करना था. नेक्स्ट कलर ले लेंगे अब हम. ओके, सो चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, से 5, 11, 17 and 23. ओके, चेक 301 इसमें आएगा या नहीं आएगा. लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला है 5, 11, 17, 20. सो लिस्ट ऑफ नंबर बोला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट इट इज एन एपी. ओके, एपी और नॉट वी हैव टू चेक, क्योंकि बोला क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर. अगर ऐसा बोला होता कि इन द गिवन एपी, देन वी विल नॉट चेक. सो यहाँ पे हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं तो ऐसे भी चेक करो, ऐसा बोला तो नहीं है, तो हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे. से 11 minus 5 6, 17 minus 11 6, 23 minus 17 6. So yes, it is an AP. Okay, now 301 will be there or not. So again same, A is equals to 5, D is equals to say A2 minus A1, say 11 minus 5 is equals to 6. So AN is equals to A plus N minus 1 into D. Therefore AN, so 301 will be A, 5. it is 5, plus N we don't know, and D 6. So 301 minus 5 is equals to N minus 1 into 6. Therefore 301 minus 296 divided by 6 is equals to N minus. So 6, here we will do like this only, 296 divided by 6, and this will come plus 1 is equals to say N. LCM we will take. So 296 plus 6 divided by 6 is equals to N. So again we will write N is equals to 302 divided by 6, right? So it cannot be divisible by 6. Say 6 5s are 30. Okay, and then 5, then 0.6 not will come 0, 3. So N we are getting 5.03, which is not a natural number. So 301 is not a term in the given AP. Done? Okay. Next example. So, how many 2-digit numbers are divisible by 3? Okay, divisible by 3. How many 2-digit numbers? Okay, 2-digit numbers. First 2-digit number is 10, then 11, then 12. Dot dot dot. कहाँ तक जाएंगे हम? 99. Now divisible by 3. So first 10 will not be there. 11, 12 will be there. Then 15 will be there, then 18 will be there. 99 will be divisible by 3, right? So 99. कितने हैं ये n ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने हैं. ओके, सो कैसे करेंगे? से A है हमारा 12, D है हमारा 15 minus 12, that will be equals to say 3. ओके, सो कैसे आया ये? A2 minus A1, राइट? देन क्या करेंगे हम? हमें तो n ढूंढना है. सो से AN
is equals to a plus n minus 1 into b. Therefore an 99 we will take a, that is 12 plus n minus 1 into b 3. So 99 minus 12 is equals to say n minus 1 into 3. So 87 divided by 3 is equals to say n minus 1. 29. So 87 divisible by 3 है Yes, sir, 29. 29. So 29 plus 1 is equals to n. Therefore n is equals to 30. So 2 digit 30 नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे. ओके. एग्जाम्पल 8. क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 8? फाइंड द 11th टर्म. ओके. 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी. ये ऐसा हमने एक्सरसाइज में भी किया था, याद है? कल ही किया था कि 11th टर्म फाइंड करो. 10 7 4 -62. बट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब फ्रॉम द लास्ट 11th टर्म फाइंड करना है. तो हमने क्या किया था कल, याद है? इन्वर्ट कर दिया था. सो पहले हम उल्टा लिख लेते हैं. -62 डॉट 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 देन से 4 7 and 10. Now a will be equals to say -62. B will be what? You tell me. What will be the B? 10 minus 7. 10 minus 7. Yes, 10 minus 7. Say 3. Done? Yes. We have to find out A11 in this AP. Okay? So A11 is equals to A plus say 10D. A11 is equals to A minus 62 plus 10 multiplied by D, that is 3. Minus 62 plus 30. So it will be what? Minus 32. Minus 32. So A11 will be what? Minus 32. Means अगर ये जो है इसका आगे से A11, सो ये आगे से गिनेंगे तो इसका पीछे से ही हो जाएगा. सो जो हमें पूछा था कि पीछे से 11th टर्म कौन सा होगा, सो इट विल बी -32. ओके. देन 9th वन. चलो 9th में क्या बोल रहे हैं? अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. मतलब सम कितना है हमारे पास? 1000 रुपीज है एंड 8% इंटरेस्ट है. लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया था एक्सरसाइज में. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में. नाउ क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. मतलब हर साल के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट करो. देन डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी. क्या ये इंटरेस्ट जो है वो एपी बनाएगा? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 इयर्स मेकिंग द यूज ऑफ दिस फैक्ट. अगर हाँ एपी बनाएगा तो 30 ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें पता करना है. ओके, 1000 रुपीज इन्वेस्टेड है. सिंपल फॉर्मूला अगर तुम देखो तो तुम्हारा आएगा PRT by 100, where P is the principal amount, R is the rate of interest and T is the time period. मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वैसे. सो अगर इंटरेस्ट से देखें हमारा फॉर्मूला, सो वो आएगा PRT by 100. सो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8 से फर्स्ट ईयर एंड देन से 100. सो 80. सो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 80 रुपीज फर्स्ट ईयर का. ओके. देन वैसे ही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे. यहाँ तुम लिख सकते हो इंटरेस्ट आफ्टर 1 year.
Then next again say interest after second year. Say PRT divided by 100 is equals to again 1000 multiplied by 8 multiplied by 2 divided by 100. क्यों 2 लिया? क्योंकि सेकेंड ईयर है इसलिए. ओके, सो 0 0 कट, सो आएगा 160. वैसे ही थर्ड ईयर के लिए गिनेंगे. So say 1000 8 3 are 24 and 0. So 240 डॉट डॉट डॉट. क्या ये एपी बना रहा है? देखो 160 माइनस 80 डी 80, 240 माइनस 6 160 80. So yes, it forms an AP. Yes, it forms an AP since common difference is same. Okay, now what it will be after 30 years? Okay, so say we have 830 years. So A 80 हो जाएगा plus n minus 1 that is 29 into D 80 plus 80 is common. See, दोनों में 80 है, so 80 I can take common. 1 plus 29, so 80 into say 30, 2400. As it is in rupees, we will write. Done. Okay, 2400 rupees interest at the end of the 30 years. Simple. पता चला? Yes, sir. And example number 10. In a flower bed, there are 23 rose plant in the first row, 21 in the second. अच्छा, first row में 23, second में 21, then 19 in the third, and so on. There are 5 rose plant in the last row. How many how many rows are there in the flower bed? कितनी रोज होगी? रोज मतलब ये फर्स्ट रो, सेकंड रो. फर्स्ट रो में है 23 प्लांट, सेकंड रो में है 21, थर्ड में है 19, लास्ट में है 5. तो कितनी होगी? मतलब n फाइंड करना है. सिंपल. ओके, सो a कितना है हमारा? 23. b कितना है हमारा? से a2 minus a1 is equals to 21 minus 23 is equals to minus 2. So a n is equals to a plus n minus 1 into d. तो कैसे आएगा? a n की वैल्यू हमें पता है क्या है? 5. लास्ट टर्म देख लेते हैं. a है हमारे पास 23 एंड n हमें पता करना है एंड d है हमारा -2. So 5 minus 23 is equals to n minus 1 into -2. So it will be कितना होगा ये? -18. एंड ये कितना होगा? n minus 1 into -2. So -18 divided by -2. So minus plus and 2 9s are 18 is equals to n minus 1. So 9 plus 1 is equals to n.
and therefore n is equals to 10. Okay, so total there are 10 rows in the flower. Understood? So ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे ऑफ से 5.2 एक्सरसाइज जो है उसके पहले के जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स समझ में आए. सो वी विल स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 5.3. ओके, चलो तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कल मैंने तुम लोगों को थोड़ा बताया था कि ये एक्सरसाइज में क्या है. ये एक्सरसाइज में हमें एसएन ढूंढना है. क्या है? एक फॉर्मूला एक ऐड हो जाएगा हमारा. एसएन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू. ये हमारा एक फॉर्मूला अगेन दूसरा है. मतलब कि दो फॉर्मूला पे ही चैप्टर है पूरा. एक फॉर्मूला हमने देख लिया है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है ये. ओके, तो उसके जैसा ही लग रहा है. देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस ए है. ओके, एन बाई 2 भी है यहाँ पर. Sn मीन्स व्हाट? Sn मीन्स an जो था, तो an हमें क्या बताता था कि एक पर्टिकुलर टर्म और से लास्ट टर्म और से पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पर Sn क्या बोल रहे हैं कि जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे कि 10 टर्म्स है. ओके, सो S10 दैट मीन्स कि सारे 10 जो टर्म्स है उसका सम कितना होगा, वो हमें Sn दिखा. सो वो जो हमारा फॉर्मूला है वो तो यूज आएगा ही आएगा. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये तो यूज आने ही वाला है. साथ साथ में ये करना है. सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. तो पहले एपी पूरा दिया हुआ है 2 7 12 टू 10 टर्म्स. मतलब 2 है पहला न्यूमेरिकल, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट. कितनी टर्म्स है ऐसी? 10 टर्म्स है. 10 नंबर नहीं है, वैल्यू नहीं है. 2 10 टर्म्स मतलब ऐसी कितनी टर्म है? 10 टर्म्स है. से दिस इज a1 a2 a3, सो हियर विल बी से a10. 10 टर्म्स मतलब a10 हुआ. उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है. ओके, लेकिन ये सब जो है एपी की सारी टर्म्स, उसका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये 10 ही ढूंढ लेते हैं क्या है, तो हमें पता चलेगा. सो सबसे पहले हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 2 से d इज इक्वल्स टू, जो कर रहे थे हम वही करना है, a2 माइनस a1 दैट विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 5. ओके, सो a हमारा हो गया है 2 एंड d विल बी 5. ओके, सो a10 पहले फाइंड करते हैं. सो a10 इज इक्वल्स टू a plus 10 minus 1 into d. So a2 plus 9 into d, say 5. 9 5 are 45 plus 2 47. So a10 हमारा कितना आया? 47. a10 मिल गया हमें. अब सारे ही टर्म्स का क्या ढूंढना है? सम ढूंढना है. तो भाई सम का फॉर्मूला तो है हमारे पास. हमारे पास a है, n है, d है, सारी ही वैल्यू है तो वैल्यू भी पुट करनी है. सो से s कितनी टर्म है टोटल? 10. सो s10. n भी कितना है? 10. सो 10 बाई 2 इनटू ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a. a कितना है? 2. ओके, सॉरी, हाँ सही है, ट्वाइस ऑफ a. ट्वाइस ऑफ a दैट इज 2 प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5. डन. सो ये कितना हुआ? 5. 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5. 5 इंटू से 4 प्लस 5 इंटू से 49. 55 is 250. सो ये हो जाएगा 245.
एस सो सम कितना आएगा 240। बस ऐसे ही समझ में आ गया नहीं, वैल्यू ही रखनी है सिर्फ, सिंपल है राइट, कुछ भी है टफ। एक कंसेप्ट सिर्फ बढ़ गया है कि हमें टोटल एक फॉर्मूला बढ़ गया है कि से हमें अगर सम ढूंढना है तो सम मिल सकता है, दैट्स इट। समझ में आया? ओके, सो फॉर्मूला यही रखता हूं मैं। ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स से A 12, इसका भी यही करना है। सो से A कितना होगा मेरा -37, D कितना होगा मेरा A2 -A1। सो -33 माइनस ऑफ, यहाँ गलती ना हो जाए, A2 की वैल्यू -33, ये माइनस यहाँ का है, A1 की वैल्यू क्या है -37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, दैट विल बी 4। सो D की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम A12 निकाल देते हैं। सो A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 11D। A की वैल्यू क्या है -37 प्लस 11 इंटू D की वैल्यू क्या है 4। सो -37 प्लस 44, सो 4 और 3 7। ओके, सो 7, A12 की वैल्यू मुझे मिल गई है 7। सो हमें तो S12 ढूंढना है। S12 ओके, n by 2 दैट इज 12, कितना है 12/2, तो 6 हो जाएगा डायरेक्ट। देन 2 मल्टीप्लाइड बाई A कितना है -37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 11 इंटू D कितना है 4। सो 6, then 37 into 2, so 30 60 and 74, okay, -74 plus 40, so 6 multiplied by, here what we will get -30 -180, S12 will be what -180, यही हमें ढूंढना है। सिंपल, ओके। चलो, थर्ड है हमारा 0.6, 1.7, 2.8, कितनी टर्म है 100 टर्म, A 100, इनका सम ढूंढना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगेन A will be equals to 0.6, D will be equals to A2 minus A1 is equals to 1.7 minus 0.6, so कितना होगा 1.5 1.1, yes, okay, so say 4 and 7 1.1, तो 1.1 आया क्या हमारा D। ओके, नाउ वी विल फाइंड A100। देखो हमारे पास A और D है, सो तुम्हें A100 ना निकालना हो तो भी चलेगा, तुम्हें तो सम ही ढूंढना है। समझ में आया? तुम्हें तो क्या ढूंढना है, S100 ढूंढना है। तो S100 के लिए N चाहिए है, A चाहिए है, D चाहिए है,
तो ए 100 निकालने की जरूरत नहीं है, जो इसके पहले भी हमने निकाला वो एडिशनली निकाला, ए 10 निकाल दिया वो भी एडिशनली था, ए 12 निकाला वो भी एडिशनल था, क्योंकि हमें तो क्या बोला है सम ढूंढो, तो डायरेक्टली हम सम ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एन वैल्यू है हमारे पास, कितना है 100, ए वैल्यू है, डी वैल्यू है, एन वैल्यू है, सारी वैल्यू है, तो ए 100 निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एन 100 by 2 that is 50, then twice of say a that is 0.6 plus n that is 100 that is 99 into d that is 1.1, say 50 से ये कितना होगा 1.1 प्लस से इसको करेंगे से 99 into 11 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 1.2 that is 12 by 10, राइट, एलसीएम 10 ले लेंगे, सो 12 प्लस 99 into 11 1089, okay, so say S100 is equals to say 50 multiplied by 1089 into 2 that is 91 हो जाएगा 1091 and plus 10 that is 1101 divided by 10, ये 10 तो है ही, this zero कट, so क्या आया हमारा S100 is equals to 1101 into say 5, ओके, सो तो हम कर लेंगे से 1101 into 5, 5 okay, so 5505, so S100 will be say 5505, this is our answer, okay. नेक्स्ट है 1 by 15, say 1 by 15, then 1 by 12, then 1 by 10, dot 11 टर्म्स से ए 11 टर्म्स तक है, ओके, सो हमें क्या पूछा है वही सेम चीज करनी है, सो से ए, अरे यार तो मतलब लास्ट में कोई बात नहीं चलो, सो ए is equals to 1 by 50, done, and d will be equals to say a2 minus a1 is equals to 1 by 12 minus 1 by 50, so say 15 multiplied by 12 divided by 12 into, हाँ ये क्या हो गया 15, अच्छा 15 minus 12 is equals to 15 into 12. So say 3 divided by 15 into 12 को ऐसे ही लिखता हूँ अभी तो मैं 15 into 12. This will be our what? D. समझ में आया? LCM लिया है डायरेक्टली तो वही नंबर ले लिया है, तो 15 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, so 15 minus 12 divided by 15. Okay. So हमें D मिला है, A मिला है. Now our formula say Sn is equals to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d. So हमारे पास 11 terms है, so S11 is equals to say 11 by 2 into bracket 2 into say a की वैल्यू है 1 by 15 plus n है हमारा 11 minus 1 that is 10 into d की वैल्यू है हमारी 3 upon 15 into 12. ओके, सो यहाँ है हमारा 11 by 2 into the bracket, यहाँ पे 15 तो है ही, यहाँ पे और एक 3 4 हो जाएगा,
okay 3 4s are 12 and 2 5s are and 2 2s are. Okay, so we will get here 2 1s are 2 divided by 15 plus say 5 divided by 15 2s are 30. 11 by 2 bracket LCM will be 30. So here 2s are, here 1s are, so 2 2s are 4 plus 5. So 11 by 2 into say 9 by 30. Okay, so S11 will be equals to 11 9s are 99 divided by say 2 multiplied by 30. So we will do this thing 3 है, so say 33 और ये 3 कट गया, so say 33 divided by 2 times are 20. So S11 will be 33 divided by 20. Okay, so we will check this answer क्योंकि ऐसा और है और हाँ कर 33 by 20 समझ में आया? ओके नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल फाइंड दी सम्स गिवन बिलो. तो भाई इनका भी सम ही निकालना है. सो क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में है 84. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इफ इट इज एन एपी. क्या एपी है ही? एपी होगा तो हमारे पास एपी का सम का फॉर्मूला तो है ही. ओके, so we will check say 10.5 minus 7 that is 3.5 right. 10.5 minus 7 3.5. वैसे ही 14 minus 10.5 तो 3.5 तो ये भी है. तो फिर सम तो हम निकाल लेते हैं. हमें ये नहीं पता है यहाँ पर कि 84 कौन से नंबर की टर्म है. सो वी डोंट नो कि n कितना है. सो n हमें चाहिए होगा. ओके, सो हमारा a है 7, हमारा d है से 10.5 1/2 मतलब 5 minus 7 सो से 3.5 d. ओके, नाउ से हम an का फॉर्मूला लगा ले. सो an इज इक्वल्स टू a प्लस ये रहा फॉर्मूला. तो फिर से क्यों लिख रहा हूँ. सो an का फॉर्मूला लगा ले. That will be a, that is 7 plus n minus 1 into d से 3.5. So an हम ले लेंगे 84 लास्ट टर्म. ओके, माइनस 7 ये यहाँ आ जाएगा. तो then n minus 1 into से 3.5 ये कितना हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 3.5. सो 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं n minus 1. ओके, नाउ से 35 और 77 तो होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा. 70 होगा फिर 77 थोड़ी होगा. सो हम एलसीएम ही ले लेते हैं. सो से ये हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाई 35. ये यहाँ आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू n. 84 था. हाँ 84 ही था. ओके, सो से n इज इक्वल्स टू बनेगा हमारा 770 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 35. सो 7 and 30 that is 805. So 35 twos are 75 twos are okay. 35 twos are 70. So 10 and
5 105. सो 105 मतलब क्या होगा? 3 ओके. सो n हमारा क्या मिला? 20. डन. हमें n मिल गया. अब ये Sn तो आराम से मिल जाएगा. से Sn का फॉर्मूला तो है ही. सो S23 will be n by 2, that is 23 by 2 into twice a, so 2 into 7, that is 14 plus n minus 1, that is 22 into d is 3.5, so say 35 by 10. right? समझ में आ रहा है ना? 23 by 2 into से 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 140 प्लस 22 इंटू 35. अभी ऐसे ही रखो, ऐसा रखना हो तो 22 इंटू 35 होल डिवाइडेड बाय 10. अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है. ओके. सो कोई बात नहीं, करेंगे. से 22 इंटू 35. सेवन 770. सो 770 प्लस 140 भी कर ही देते हैं. से 910 डिवाइडेड बाय 10. 90. सो 91 प्लस से यहाँ से कट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 11 2 जा 22. सो 22.23 है. 11 2 जा क्या होता है? 22, तो 11.5 हो जाएगा. ओके. सो S23 is equals to 91 plus 11. So say 92 102 and 0.5, that is 102.5. अंडरस्टूड? Yes. सो हमारा जो सम है वो आएगा 102.5. अगेन वी विल चेक द आंसर. 5.3 का सेकंड का फर्स्ट. सो इन्होंने दिया हुआ है सेकंड का फर्स्ट है ये Yes, sir. 1046. हमारी कहीं पे गलती है, क्योंकि 84 तो यहीं पे है. सो सबका सम इतना तो आ ही नहीं सकता. मिस्टेक we are having 23 n by 2, that is 23 by 2 twice a, so 2 into 7, that is 40 plus n minus 1, that is 22 into d is 3.5, so 35 by 10. ओके. सो यहाँ पर LCM ले लिया है, तो 140 प्लस 22 35 डिवाइडेड बाय 10. देन यहाँ गलती है 22. ये फिर से करते हैं. क्या हुआ? 22 एंड 35 से 35 एंड 22. 770 ही आ रहा है. 770 प्लस 140 910 by 10. 90. कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. क्या है? 7 10 and half 14 and 84. ओके. पहला ए हमारा है 7, डी है हमारा 10 and half minus 7, so 3.5 करेक्ट है. देन ए एन फाइंड करते हैं, तो एन इज इक्वल्स टू से 84. ए दैट इज 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो 84 minus 7 is equals to n minus 1 into 3.5. 84 minus 7, that is 77 करेक्ट है. 77 और ये 3.5 नीचे आया,
सो 3.5 और 10 ऊपर जाएगा, ओके, इज इक्वल टू n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n आएगा हमारा 770 प्लस 35 डिवाइड बाई 35, करेक्ट। देन हमारा आएगा 805 डिवाइड बाई 35, सो 35 2 जा 70, सो 10 and 5 से 10 and 5 105, so 3 जा 23, 35 इंटू 23 क्या हो जाएगा हमारा 805, सो n हमारा आ गया है 23, n 23 आया है, सो S23 की वैल्यू क्या होगी n by 2, that is 23 by 2। S23 की वैल्यू होगी 23 by 2, ओके। देन ट्वाइस a, so 2 into 7 14 plus n minus 1, that is 22 into d, that is 35 by 10, okay। so 23 by 2 अगेन यहाँ पे 10 LCM आएगा तो 140 by 10, ये तो सही है यार, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? $1046 and half ऐसा आंसर है। लेकिन हमारी गलती तो है ही, क्योंकि 84 प्लस 14 करेंगे तो ही कितना हो जाएगा, 102 थोड़ी आएगा। ये जितना दिया हुआ है उतना करेंगे ना तो भी उससे बढ़ जाएगा, तो हमें तो 23 टर्म्स है, बीच वाली भी टर्म्स है, सो कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा। चलो फिर से करते हैं, क्या है, सेवन प्लस 10 and half plus 14 plus plus 84, यही गिवन है, ओके। चलो, सो a is equals to 7, b is equals to say a2 minus a1, that is 10.5 minus 7, so 3.5। नाउ an sn के लिए हमारे पास n होना चाहिए, sn के लिए हमारे पास n होना ही चाहिए, ओके। सो an का फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अगर लास्ट टर्म हमारी को 84, a है हमारा 7, d है हमारा n माइनस 1 तो है ही, और d है हमारा कितना 3.5, सो 84, ये 7 ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3.5। 84 में से 7 जाएंगे, सो 7 जाएंगे तो 4 और दूसरी 77, ये 3.5 यहाँ आ जाएंगे, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। अगर यहीं एलसीएम ले ले तो 77 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इज इक्वल्स टू n। तो ये कितना हो जाएगा
80.5 divided by 3.5 is equals to n. So n क्या होगा? 10 और 10 तो कट हो जाएंगे. So 805 by 35. So ये हमारा 23 आ रहा था. Five two za 70. 105. 35 3 za 105. 23 सही है. 23 टर्म्स होगी. Sn का फॉर्मूला है n/2 twice n plus n minus 1 into d. n by 2, that is 23 by 2. 2 into a, so 7 into a, 2 into 7 14 plus n minus 1, that is 22 होगा क्योंकि n 23 है तो 22 into d 3.5. So 23.2 कितना आएगा? 11.5 प्लस इसका हम कर देते हैं से डायरेक्ट ही करते हैं 22 into 35. एक पॉइंट बाद में काट देंगे. 3 2 6, 3 2 6, 5 2 10, 0 1, 5 2 10 and 1 11. ओके, एक पॉइंट काट देंगे तो कितना हो गया? 77. 22 3 जा 66 होता है और 0.5 भी है उसमें, सो कितना हो जाएगा? 77. हाँ 77 into 14, so 81 and 91. हाँ तो सही है. 91 into 11.5, so 115 into say 91. कितना पॉइंट लिया था हमने? एक पॉइंट लिया था तो एक पॉइंट यहाँ काट देंगे. आ गया 10.6.5. दिस इज आवर आंसर. करेक्ट. समझ में आ गया. एंड नाउ वी विल आइडेंटिफाई कि हमारी गलती कहाँ हुई है. जहां तक मुझे लग रहा है हमारी गलती यहाँ हुई है, मल्टीप्लाई करने में. ओके, ये रही गलती. सी, ये क्या है? मल्टीप्लाई. और ये क्या कर दिया हमने? प्लस. इसीलिए आंसर नहीं आ रहा. अंडरस्टूड? कितना छोटा सा साइन मीन्स जस्ट इमेजिन कि हमने पूरा गिना फिर वापस क्रॉस चेक किया, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने गलती से मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस कर दिया. दैट्स व्हाई आंसर नहीं आ रहा. और वैसे भी अंडरस्टैंडेबल है, तुम्हारी लास्ट टर्म ही 84 है तो तुम्हारा आंसर 102 कैसे आ सकता है? इनका ही सम जो दिया हुआ है उनका ही सम करो. 84 प्लस 14 तो 98 तो यही हो गया. प्लस 10.5 करोगे तो 108.5 तो इन्हीं तीन का ही हो गया 108.5. तो 102 आंसर कैसे हो सकता है? अंडरस्टूड? सो उस वे में भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई कितना आंसर हो सकता है. ओके, सो देखो एक छोटी सी गलती मेरे से ही हो रही है.
सो हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव टू डू, मुझे तो करनी ही है कि ऐसी गलती ना हो, ओके, बट एट द सेम टाइम तुम्हें कितनी करनी पड़ेगी, ओके। कि ये जल्दबाजी में देखो हमने कैसे फटाफट फटाफट करते करते ये मल्टीप्लाई का कर दिया प्लस, दैट्स व्हाई आंसर नहीं आया। अंडरस्टूड? ओके चलो, तो दूसरा न्यूमेरिकल उसी में देखते हैं। दैट इज हमें गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस प्लस 10, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। सो देखो 2 है मतलब एपी तो है ही, सो हमारा ए हो गया 34, हमारा डी हो गया से 32 माइनस 30 माइनस 2, ओके। हमें एन चाहिए ही है तो हम एन फाइंड करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, ये ए ले लेते हैं 10 माइनस 34 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो एन माइनस 1 इंटू से माइनस 2, ये हो गया माइनस 24 माइनस 2 इक्वल्स टू एन माइनस 12 plus 1 is equals to n, therefore n is equals to 13। डन, n आ गया 13। अब Sn ढूंढते हैं। Sn का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, तो 13/2 that is 6.5, ओके। 13/2 that is 6.5, twice a, so 2 into 34 that is 68 plus n minus 1, so by 13 minus 1 12 into d minus 2, .5 68 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 12 टू जा 24 हो जाएगा, 6.5 इंटू ब्रैकेट 4 जाएगा तो 64, देन 54 एंड 44, 65 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 44, 65 इंटू 44, 65 इंटू से 40, टू 2860, आंसर क्या है SN 286, ओके। क्यों ऐसा आंसर आया? क्योंकि ये कम होता जा रहा है, ओके। 34 से 32 तो 286 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ओके। सो आज इतना रखे या एक और कर लेते हैं? एक ही बाकी है, ओके। चलो क्या है,
-5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ये सबका प्लस करना है हमें। -5 -8 -11 -230 ए देखो हाँ चलो ये कितना है माइनस डी -8 -5 सो -8 प्लस 5 -3। तो देखो ये -5 है, -3 ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 है उसमें -3 ऐड करेंगे तो -11 आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं थी। ओके ए और डी मिल गया। an ढूंढते हैं, an तो है ही हमारे पास -230 इज इक्वल्स टू a -5 प्लस n -1 इंटू d -3 -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू से -3। सो ये यहाँ कैसे होगा कि -230 प्लस 5 दैट इज -225, ये नीचे आ जाएगा। सो -3 इज इक्वल्स टू n -1। ओके ये कितना होगा 2 7 21 1 5 एंड 5 75 3 225। So 75 plus 1 is equals to n. Therefore n is equals to 76. Okay, Sm ढूंढते हैं। So Sm will be equals to n by 2, 76 divided by 2, so 35 और दूसरे 3 38। Okay, right? 38 twice a, so 5 है -5 है into 2 that is -10, right? 2 into -5 -10, right? Plus n -1, so 76 -1 75 into d, d क्या है हमारा -3 38 -10, ये माइनस यहाँ आ गया 75 3 अभी तो काटा था 225। डन। 38 ये कितना हो गया -235। मल्टीप्लाई करना है इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो करना पड़ेगा और क्या। -25 आएगा, माइनस -25 वहाँ सबसे ऊपर -10 क्योंकि नो सबसे सही है ना, क्योंकि ट्वाइस ए, सो 2 into -5 सो -10। ओके सो करेंगे 235 into 38, 235 into 38। So 8930, so -8930। डन, आया समझ में? ओके आंसर आ गया हमारा, देख लो पीछे एक बार। राइट, सो समझ में आ गया। तो 5.2 भी तुम्हें कंप्लीट करनी है एंड 5.3 भी यहाँ, हाँ और 5.3 भी
फंडा हमने आज समझ लिया है, यही फंडा पे आगे बढ़ते जाना है। जैसे 5.2 था, एन क्या फॉर्मूला पे बेस था पूरा, तो वो हमने किया और फिर उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आए थे, तो वैसे ही ये सारे फॉर्मूला है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, दैट्स इट, चैप्टर ओवर। ओके, सो प्रैक्टिस करो अच्छे से, अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड जो पूछना और वो सब था वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, दिशा भी आ जाएगी। टुमारो विल बी हॉलीडे, ओके। तो थर्सडे वी विल हैव थोड़ा मोर टाइम, दैट इज से 4:45, थर्सडे एंड फ्राइडे फ्रॉम 4:45 to 7 वी विल डिस्कस। सो ये हॉलीडे कवर हो जाए एंड वी विल कवर मैथ्स, तो इतना किया हमने, से वी विल हैव से साइंस। आई विल मैसेज, मैं मैसेज कर दूंगा, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना।